And joining us now for perspective is Dinesh Kumar Khara. He is SBI chairman, and we will speak to him on the provisions as far as the banking sector is concerned in the budget. But before that, let me begin by asking you, Mr. Khara, about your overall views on the budget. Well, I would say that it's a very well-balanced budget, which has given adequate push to the capex spending without really compromising the fiscal discipline. I think it will go a long way in terms of improving the purchasing power of the households and enhancing the prosperity of the agriculture and the allied sectors. So overall, I would say that this budget really augurs very well for all the subsegments of the society, and there's an adequate focus which has been brought in for the MSME sector as well, because there is a provision for infusion of about 9,000 crore worth of corpus for revamping the credit guarantee scheme, CGTMSC, which we call it popularly, and which will go a long way in terms of reaching out to the MSME sector and enabling them to raise credit at much more convenient terms. We expect that this kind of a CGTMSC guarantee will actually reduce the interest cost for the MSMEs to the extent of 1%. And even I would say that even the enablers which have been provided in terms of national data governance policy and which will actually ease out the KYC related challenges, that also will go a long way in terms of really supporting the economic activity across. And apart from that, there is a huge focus for the digital stack, and which will enable banks to really have access to information relating to various entities, and which is more credible information, and it actually enhances their ability to lend faster, much faster, and on more credible terms. So I think overall I would say that it's a great budget, and it has given adequate importance and relevance, emphasis for all the subsegments of the society. दिनेश जी, अगर हम सरकार के फिस्कल डिसिप्लिन पर ध्यान दें और सरकार के बोरोइंग प्रोग्राम्स को देखें तो इससे क्या सिग्नल मिलता है? जो क्रेडिट की पोजीशन है वो इस साल, आने वाले साल में बजट के मद्देनज़र कैसी रहने वाली हैं? क्या हम सभी प्रोडक्टिव सेक्टर को एडिक्वेट क्रेडिट उपलब्ध करा पाएंगे, या फिर सरकार के जो बोरोइंग प्रोग्राम्स हैं उसका कैलेंडर आपको कैसा दिखाई देता है? देखिए, ऐसा है कि मेरा मानना यह है कि जो टैक्स बॉयंसी के नंबर यहाँ एस्टिमेट किए गए हैं इस साल में, वो जो है एट द लेवल ऑफ 1 रेकन किए गए हैं, जबकि पिछले गत वर्षों में हमने देखा है कि वो तकरीबन 1.5 टाइम्स रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो टैक्स कलेक्शन है वो एक्सपेक्टेड इट विल बी इवन बेटर। सो हालांकि बोरिंग प्रोग्राम जो एक्सपेक्टेड है अबाउट 15.4 ट्रिलियन का एक्सपेक्टेशन है, जो ग्रॉस बोरिंग प्रोग्राम है, बट हमारा ये मानना रहेगा कि ये इस बोरिंग प्रोग्राम के चलते, और जैसा कि फिस्कल डेफिसिट की बात की जा रही है कि अब की बार 6.4% था, इट विल बी रिड्यूस टू 5.9% फॉर द कमिंग ईयर. So I think overall it will actually augur well for interest rate scenario in the economy. और उससे interest rate को it will remain under check, and perhaps it will support the economic initiative, and lower interest rate would be available, keeping in view of the borrowing program of the Government of India. Right. So let's come to the announcements that were made by the Finance Minister with regard to the banking sector. The KYC process will be simplified. Instead of a one-size-fits-all approach, there will be a risk-based approach. Can you expand on that and how that is going to help the overall banking sector? Yeah, actually, when it comes to KYC, normally, which we normally call it a know your customer. So know your customer from the risk perspective will go a long way in terms of understanding and profiling the customer. And once that kind of information is available, that kind of a detailed information is available, it will enable the banks to really bucket the customers accordingly, and also deal with the customers in the manner which they deserve to be treated.
depending upon their risk perception of the financial sector. So I think it's a as compared to one size fits all. This is a very, very pragmatic approach, and it will create it will actually reduce frictions and will enable the banking system to offer the frictionless services to the customers. दिनेश सर, आगे जाते हुए बजट का असर पूरे बैंकिंग सेक्टर पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, और इसके मद्देनजर कि आईएफएससी जैसे गिफ्ट सिटी जैसी जगहों पर फॉरेन बैंक्स को भी हम अलाउ कर रहे हैं, साथ ही साथ हम डिजिटल बैंकिंग को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि जो शॉर्ट लेंडिंग या फिर कम अमाउंट की जो लेंडिंग है उसको डिजिटली कैसे जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ओवरऑल जो बैंकिंग सिनेरियो है आपको कैसे बदलता हुआ नजर आ रहा है आगे जाते हुए? जहाँ तक गिफ्ट सिटी में जो आईएफएससी में जो फॉरेन बैंक्स सेटअप हुए हैं, अपने ऑफिसेज अपने ब्रांचेस जिन्होंने सेटअप की हैं, उनके लिए मर्जर एंड एक्विजिशन की फाइनेंसिंग गिफ्ट सिटी से उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है इस बजट में, इस बजट के माध्यम से। तो मेरा ये मानना है कि जैसे इकोनॉमी में M&A की अपॉर्चुनिटीज एमर्ज हो रही हैं और जिनको कि ओवरसीज लेंडर्स जो है अपने डिफरेंट फॉरेन सेंटर्स से फाइनेंस करते हैं, एज अगेंस्ट दैट उस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है अपना गिफ्ट सिटी के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे कि जो इंटरेस्ट अर्निंग रहेंगी सिस्टम को, वो सब जो है गिफ्ट सिटी की के ओवरऑल जो रीच है उसमें रहेंगी। और साथ ही साथ जहाँ तक आपने ये पूछा कि जो स्मॉल लेंडर्स हैं उनको जो डिजिटल एक अप्रोच दी जा रही है, हमारा ये मानना है कि जो नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री बनाई जा रही है, इसके माध्यम से जो क्रेडिट फ्लो है वो काफ़ी एफिशिएंट होगा, और ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी रहेगी जिसमें कि फाइनेंशियल और अदर एंसिलरी इंफॉर्मेशंस भी अवेलेबल रहेंगी, और इनको रिव्यू करने के बाद किसी भी बैंक के लिए ये बहुत आसान रहेगा कि वो लोन मैनेजमेंट सिस्टम में अपने लोन मैनेजमेंट सिस्टम को नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री से लिंकअप कर पाएँ, और उसके चलते उनको जो लोन की सुविधा उपलब्ध करवानी है वो उसका अप्रेजल बहुत रोबस्ट अप्रेजल रहेगा, और रोबस्ट अप्रेजल के साथ साथ जो बैंक की डेलिंक्वेंसीज होती हैं इन स्मॉल लोन्स में वो भी कम हो जाएंगी, और हम लोगों की जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी में जो चैलेंज रहता था वो भी काफ़ी हद तक जो है ब्रिज हो जाएगा इसके माध्यम से। और एक अगर फॉलोअप मैं कर पाऊँ कि ये किस फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन की बात बजट कर रहा है, जो कह रहे हैं कि आगे जाते हुए हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए रजिस्ट्री के बाद ये फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशंस, जिसमें पब्लिक कंसल्टेशंस की भी बात वित्त मंत्री ने कही है, तो और कौन से रेगुलेशंस हैं जिस पर आरबीआई और बैंकिंग सेक्टर मिलकर के आगे जाते हुए दिखाई देगा? बेसिकली जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है काफ़ी पुराना एक्ट हो गया है, और इसके इन द रीसेंट पास्ट इकोसिस्टम में बहुत कुछ चेंजेस आई हैं, तो आई थिंक उसकी और बहुत सी प्रोविजंस हैं जिनको कि रिविजिट करने की आवश्यकता है। तो ये एक बहुत ही एनकरेजिंग स्टेटमेंट है कि उन सब प्रोविजंस को रिविजिट करने का प्रावधान किया गया है, एंड उससे जो है बैंक्स और कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन, बैंक्स के लिए ये संभव हो पाएगा कि वो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन जो कि बड़ी कंटेम्प्रेरी एक्सपेक्टेशन है इन द करंट एटमॉस्फेयर, तो हम मीट आउट कर पाएंगे। इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन समय के चलते शायद वो संभव नहीं होगा उन सबको लिस्ट करना, लेकिन बेसिक उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है। And the finance minister spoke about how investor protection will be enhanced in the banking sector. Can you explain to us the broad contours of this? देखिए, ऐसा है कि एक्चुअली गवर्नेंस इज वन ऑफ द वेरी की एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टर्स, and I think considering the current state of the capital markets, there's a need for broad basing the investors base. So I think channelizing that capital requires enough confidence of the investors into the governance mechanism of various entities. So I think to that extent, this investor protection will go a long way in terms of bringing in the first time investors also. This protection will be more like a safety net which will be available to the investors, and it is also more of a confidence building measure
which I believe will go a long way in terms of addressing their anxieties. So I think this is actually a very big promise in enhancing the business environment in the financial sector. दिनेश सर, आगे जाते हुए जो बैंकों के डिपॉजिट की स्थिति है वो आपको कैसी दिखाई दे रही है, जिसमें कि जैसे नई स्कीम में महिला सम्मान बचत पत्र योजना में कहा गया है कि महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए तक फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर जो सीनियर सिटीजन है वो 15 लाख की बजाय 30 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। आगे जाते हुए आपको डिपॉजिट का सिनेरियो किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये देखते हुए कि नई टैक्स रिजीम में शायद लोगों के पास ज़्यादा पैसे उनके हाथ में होंगे, सारे एग्जेम्पशंस खत्म होंगे, हम नए टैक्स कल्चर की तरफ अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? मेरा ये मानना है कि जो टैक्स रिलीफ दिए जा रहे हैं उनके चलते जो लिक्विडिटी रहेगी कॉमन मैन के पास वो कहीं ज़्यादा रहेगी, और इससे कंज्यूमर डिमांड भी दिखाई देगी और साथ ही साथ डिपॉजिट का एक्रीशन भी होगा। और साथ ही साथ ये जो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो प्रावधान किया गया है वो भी एक बहुत ही एनकरेजिंग स्टेप है, जिसमें कि एक तो उन लोगों को भी स्टैंडर्ड डिडक्शन की फैसिलिटी उपलब्ध करवा दी गई है, तो उसके चलते उनका टैक्स इंसिडेंस कम होगा और उनकी बचत की जो क्षमता है वो कहीं ज़्यादा है, और वो उनका जो पर कैपिटा सेविंग्स है वो कहीं ज़्यादा रहता है। तो मेरा ये मानना है कि ये डिपॉजिट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया गया है। Are banks now, like yours, in a position to go in for improved credit flow? Because I was reading the economic survey, it spoke about how the twin balance sheet problem has been addressed of the financial institutions as well as of the companies. So going forward, does it look very sanguine, the scenario as far as credit flow is concerned? Yeah, I'm quite optimistic about the likely credit growth. And apart from that, the kind of focus which has been brought into infrastructure, into agriculture, into MSME, and the kind of excess liquidity which will be there in the system through the relief in the tax, I think all this augurs very well for the consumer demand also. So I think practically all the subsegments of the economy are expected to really do very well. So which will offer enough opportunities for extending credit by the banking system as well. आगे जाते हुए सर, एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेक्टर पर जो फोकस दिखा है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो एग्री क्रेडिट का जो टारगेट है वो 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है। इसमें ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पार्टिसिपेशन रहेगा। एमएसएमई को भी लेकर के जिस तरह से आपने कहा कि 1% का उनको कंसेशन मिल पाएगा, इस तरह के जो क्रेडिट गारंटी स्कीम वित्त मंत्री लेकर के आई हैं 2 लाख करोड़ रुपए तक की, तो ओवरऑल जो क्रेडिट का सिनेरियो है, ये भी देखते हुए कि आईएमएफ ने कहा है कि आगे जाते हुए भारत में महंगाई की दर अगले 2 सालों में और भी कम होती हुई नजर आएगी। तो इंटरेस्ट रेट को लेकर के आप कोई एक तरह से डायरेक्शन दे सकते हैं हम लोगों को कि आरबीआई का क्या रुख रह सकता है, या फिर इन जनरल इंटरेस्ट रेट कैसे बिहेव करेंगे अगले 1-2 सालों में? जैसा कि आपने देखा है कि गत वर्षों में भी जैसे जैसे आरबीआई की पॉलिसी रेट में इंक्रीज होता है तो लोन के रेट्स में भी इंक्रीज होता है, डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट में भी इंक्रीज होता है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा और ग्लोबली भी अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में, जैसा कि अभी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो मेरी आशा है कि हम शायद एक लो इंटरेस्ट रेट रिजीम की तरफ आगे बढ़ेंगे, और जो कि एक फर्दर एक इंसेंटिव रहेगा फॉर एनकरेजिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। दिनेश कारा जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और बजट पर अपनी राय बेबाकी से इस खास कार्यक्रम में रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो जो मिडिल क्लास है उसको लेकर के क्या कुछ मिला है इस बजट में उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ टैक्सेशन के मोर्चे पर हमारे साथ होंगे खास पैनल, चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट बजट स्पेशल। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Welcome back. You're watching the special edition of News Night on budget for FY 2024. The financial year is 2023-2024, and we are looking at the finer points of the budget. We are speaking to the people who've made the budget, the makers of the budget, the brains behind the budget, and very soon we'll be going across to the head of the direct taxes in India and indirect taxes as well, to understand the finer points of the changes in the direct taxation as well as the few changes that have been made in indirect taxes as well. But before that, look at the infrastructure sector. Infrastructure continues to be one of the central themes of the union budget, with a lot of emphasis on it for the third year in a row. This has the potential to push growth and job creation. Here's what the budget proposes on infrastructure sector. Infrastructure development has been the key priority of the government. Finance Minister Nirmala Sitharaman on Wednesday announced hiking the capital expenditure by 33% to 10 lakh crore rupees for infrastructure development for 2023-24, which will be 3.3% of the GDP. Presenting the budget for 2023-24, she said the newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist in attracting more private investment. The capital investment outlay is being increased steeply for the third year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an urban infrastructure development fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment, and the budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. And for that, the Finance Minister decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policy actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crore rupees. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure and power, which are predominantly dependent on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amritkal. Bureau Report, DD India. तो अमृतकाल की सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार 3 सालों से जो बुनियादी ढांचा है या फिर कहें कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें बढ़ोतरी दिखाई दी जा रही है और इस बार हमने 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान देखा और ये एक बहुत बड़ा फोकस इस बजट का स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है।
लेकिन अब हम बात करते हैं मिडिल क्लास की। बजट में मध्यम वर्ग को काफ़ी बड़ी राहत दिखाई दी है। सैलरी वालों को नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब की संख्या को घटा करके 5 कर दिया है। सरकार ने अब नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट बना दिया है, लेकिन जो लोग चाहते हैं पुरानी व्यवस्था में रहना, वो फिलहाल उनके लिए वो विकल्प भी जारी है। बजट से सबसे ज्यादा आम आदमी की ओर से इनकम टैक्स में छूट की आस और मांग होती है। वित्त मंत्री ने इस बार करदाताओं को निराश नहीं किया और मिडिल क्लास को बजट में वर्षों बाद बड़ा तोहफा दिया है। वेतन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में भी बदलाव का ऐलान किया है। I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी साफ कर दिया कि करदाताओं को ये जो राहत दी गई है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो वित्त वर्ष 2023-24 में नया इनकम टैक्स सिस्टम चुनेंगे। पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले जैसे ही टैक्स देते रहेंगे। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए कर छूट की सीमा 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले यह सीमा 5 लाख रुपए थी। नए टैक्स सिस्टम में पहले किसी तरह की छूट नहीं थी, लेकिन अब इसमें भी 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है। यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पुरानी व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और उसमें छूट जारी रहेगी। बदली हुई टैक्स की दर को अगर आसान भाषा में समझें तो नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में छूट के ऐलान के बाद अब व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर के मुताबिक 3 लाख रुपए तक टैक्स की दर शून्य रहेगी। 3 से 6 लाख रुपए तक 5%, 6 से 9 लाख रुपए पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि नई टैक्स व्यवस्था में 9 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 45,000 रुपए का भुगतान करना होगा, जो कि उसकी आय का केवल 5% है, जबकि अभी उसे ये 60,000 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है। यानी 9 लाख तक की आय वाले को 15,000 रुपए की बचत होगी, जो कि करीब 25% है। इसी तरह 15 लाख रुपए की आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रुपए या उसकी आय के 10% भुगतान करना होगा, जबकि अभी उसे 1,87,500 रुपए टैक्स देने होंगे। यानी उसे अब 37,000 रुपए कम देने होंगे या फिर 20% की कमी होगी। फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शंस हैं। 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। सरकार ने नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट ऑप्शन करार दिया है। We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. लेकिन पुराना सिस्टम अभी जारी रहेगा और जो लोग इसे चुनना चाहें वो इसे चुन सकते हैं। अगर आप पुराना टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपको नई राहत नहीं मिलेगी। पुरानी व्यवस्था में आपको अपने निवेश के लिए सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे और पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि देश में वर्तमान कर की दर 42.74% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। बजट 2023 नई कर व्यवस्था में उच्चतम सरचार्ज दर को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर की दर 39% तक कम हो जाएगी। अप्रत्यक्ष करों की बात की जाए तो कुछ खास सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क को संशोधित करते हुए उसमें लगभग 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे सिगरेट और महंगी होगी। इसके अलावा चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिससे चांदी कुछ महंगी होगी। बजट में सोने और प्लैटिनम से बने सामानों पर सीमा शुल्क में वृद्धि की गई है। वहीं चांदी से निर्मित डोरे, बार और सामानों पर आयात शुल्क में वृद्धि की गई है। टीवी पैनल के ओपन सेलों के पुर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क को घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव है, जिससे टीवी सस्ती होगी। मोबाइल फोनों के कुछ एक पुर्जे और कैमरा लेंसों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्कों में राहत दी गई है, जिससे ये सस्ते होंगे। लिथियम आयन बैटरी सेलों पर रियायती शुल्क को 1 और वर्ष के लिए जारी रखना होगा, जिससे इलेक्ट्रिक कार भी सस्ती होगी। लैब निर्मित हीरे के सीड्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। रबर पर भी ड्यूटी कम की गई है। इससे खिलौने, साइकिल
ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। So it's interesting, Jay, that the new tax regime has been made the default one. So if you don't opt for any, by default that will be the tax regime that will apply to you. Yeah. और जो वित्त मंत्री से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने पैसे जो आपके पास बचेंगे, जो बचत होगी। हमने सवाल किया उनसे कि जो पहले पीपीएफ में, एनपीएस में, एटीसी में लोग जमा करते थे, अब उनका क्या होगा। वो लोग सोचते हैं कि भाई नई टैक्स रिजिम में हमें कोई एग्जम्पशन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब आपके पास पैसे आपके हाथ में रहेंगे। आप पैसे पहले भी इन्वेस्ट करते थे, अब भी आप वो पैसे वहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपको ज़बरदस्ती या मजबूरी में पीपीएफ में या एनपीएस में डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिटायरमेंट के लिए एनपीएस में या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे डालने हैं, तो वो आपके पास पूरा का पूरा अधिकार है। और चूंकि आपको टैक्स कम मिलेगा, आपके हाथ में ज़्यादा पैसे बचेंगे, तो आप बेहतर फैसला ले सकते हैं। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। नया टैक्स रिजीम एज पर वित्त मंत्री ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होगा पुराने टैक्स रिजीम। Absolutely, and more money in the hands means more expenditure, more private consumption, and hence a boost to the economy. Well, green growth is one of the key priorities of the budget. Here's how the union budget proposes to promote India as a green economy. With this year's budget carrying green growth as the fifth priority in the Saptarishi steps that guide the country through the Amrit Kal, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced several reforms for the sector that will reduce carbon intensity of the economy and provide large-scale green job opportunities. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. Budget 2023-24 provides 35,000 crore rupees for priority capital investments towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. For the renewable energy evacuation, the interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will also be constructed. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores. The Union Minister also added that building on India's success in afforestation, Mishti scheme will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa, Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals and local bodies and help mobilize additional resources for such activities. Bureau Report, DD India.
तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2023 न्यूज नाइट स्पेशल, और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, चर्चा लगातार जारी है। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बजट 2023, और बजट के पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करता है। ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। पीएम मोदी ने कहा कि बजट में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी, जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमईज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के विकास से हमारे करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। गांव से लेकर के शहर तक रहने वाली हमारी महिलाओं के जीवन स्तर में भी बदलाव लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। उन्हें अब और ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं
कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने आप एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। So Ajay, the two big things that I see for women particularly in the budget is one, of course, promoting rural entrepreneurship among women, and the second, of course, is the deposit scheme. ये देखिए, अब जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसमें ये कहा गया कि जो रूरल लाइवलीहुड मिशन था उसकी वजह से जो गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिसमें ज़्यादातर महिलाएं होती हैं उनकी आत्मनिर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ी। और जब उनके लोन्स का हमने रिकवरी रेट देखा तो उसमें 95-96% के आसपास था, यानी वो जो लोन लेती हैं बैंकिंग सिस्टम से रिकवरी 96% तक जाती है, इसलिए उनको क्रेडिट देने में कोई समस्या नहीं है। अभी वो लोग जो प्रोडक्ट बनाती हैं उनको और ज़्यादा बेहतर मार्केट कैसे दिया जाए, उन्होंने तो वित्त मंत्री ने तो ये भी कहा कि जिस तरह से हमने स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक मिशन मोड में लेकर के हमने आगे लेकर के पूरी दुनिया के सामने रखा कि 2016 में प्रधानमंत्री ने शुरू किया और आज 22 में देखिए कि कई सारे यूनिकॉर्न्स, 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स आपके सामने हैं। वही कहानी सेल्फ हेल्प ग्रुप में भारत दोहराना चाहता है। ये हो पाएगा कि नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एसएचजीज को एक विकास की धुरी, एक बहुत बड़ा पिलर बना करके भारत सरकार आगे बढ़ना चाहती है। मुझे लगता है कि गांव में महिला सशक्तिकरण को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर के रूप में, ग्रोथ के पिलर के रूप में पहली बार देखा जा रहा है। और वो तस्वीरें शायद कोई नहीं भूल सकता जब खुद वो महिला राष्ट्रपति से महिला वित्त मंत्री मिलने गए और उसके बाद हमने देखा कि बजट हमारे सामने पेश में किया। Absolutely. So, well, let's now take you through some of the excerpts from the interview that Ajay and Mark had with the Finance Minister. Finance Minister Nirmala Sitharaman spoke exclusively to DD News and DD India after presenting her 5th consecutive budget, almost all during difficult times. She highlighted that the government's focus on skilling was to increase employability and hence incentivize job creation. She also highlighted that measures complement each other to create the right environment for job creation. Listen in. When you look at the economy, you can see that it is very clearly showing signs of robust revival. When robust revival happens, and especially when you take the example of the services sector, the kind of attrition which that sector is facing, but at the same time, because they are moving towards greater and greater use of technology, sophisticated technology, they are seeking also people with such skills. So to pay better is also to pay better for people with the required skills. And that's why Government of India has in this budget, through various different ways, underlined the need for skilling, upskilling and also skilling for Industrial Revolution 4.0. In that we placed specific emphasis, because skilling is one thing, upskilling is there, but today the world is moving towards greater use of Web3, and for that, if Industry 4.0 is coming up, employees also will pay more when you have people with adequate, right kind of appropriate skills. We are spending that kind of money and bringing in that kind of training for people to be better paid. So government is pushing it from a different supply side readiness. Obviously